हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ हैं सीएस एग्जीक्यूटिव AIR 1 ऑफ जून 24 अटेम्प्ट, राइट, भूमि मेहता। थैंक भूमि, यू सो आपको मच। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। यू डू नॉट नो व्हाट यू हैव अचीव्ड। इट्स ऑल इंडिया रैंक 1। आप हिंदुस्तान में सबसे उच्च नंबर लेके पास किए हैं सीएस एग्जीक्यूटिव को। सो व्हाट्स योर फीलिंग नाउ, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत खुश थी। मतलब कल तो लाइक देयर वाज एन इमोशनल रोलर कोस्टर ऑनेस्टली। पहले मार्कशीट आई, लाइक बहुत जल्दी आ गया था। हमारा 2 PM का शेड्यूल्ड था कि राइट। रिजल्ट आएगा। हाँ हाँ। एंड अराउंड 150 समथिंग आई गॉट माई मार्कशीट। अच्छा। एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी 75 इन टैक्स। आई वाज हम्म। लाइक द सब्जेक्टिव एग्जाम, मतलब पहले सीएस में देयर यूज्ड टू बी ऑब्जेक्टिव राइट एंड देन राइट। न्यू सिलेबस हैज स्टार्टेड सब्जेक्टिव. So हम्म। I was like, after giving the paper in June, I was dicey. Like I was not satisfied with the paper, but then seeing the marks, So exceptional. CS executive should never have been objective, right? So it's in practical subject and it should always be in practical only. ऐसा ही होना चाहिए था और अब practical है and you did it well. Wonderful. अच्छा, did you expect this कि you will be getting AIR 1? Not at all, sir. Not at all. No. No. So how were you in your Actually, school sir, days? I was down with fever अच्छा। during the whole 7 days. Like we have back-to-back exams. हम्म। So, but I don't know, because of the stress or something, I was down with fever during the अच्छा। 7 days. ओके। And then I was like, कि बस मुझे पेपर देना है, बेस्ट देना है. And then एंड हाउ वर इन you in your school days? आप कैसी थी पढ़ाई में? You were सर good. हमेशा से So, आया है. were you scoring a rank 1 in your class? यस यस सर. अच्छा। सर 10th में आई स्कोर्ड 100%. तभी कोविड ईयर था ना. तो ओके। मैंने अपने महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम्स में 100% स्कोर किया था. एंड हम्म। देन 12th स्टैंडर्ड में आई वॉज इन NM कॉलेज इन मुंबई. सो वहां पे आई वॉज रैंक 3 इन दिस कॉलेज. अच्छा। एंड देन इन CSET ऑल्सो आई स्कोर्ड 180 आउट ऑफ 200. सो इट वॉज अ गुड स्कोर. बट मेरा हमेशा से रैंक एग्जीक्यूटिव, मतलब एम हमेशा एग्जीक्यूटिव ही था, बिकॉज वहां पे इंस्टीट्यूट रैंक देता है. सो लाइक दैट मैटर्स. Right, So right. And obviously, this rank 1 is much ahead of any other ranks that you have got, right? Acha, what was your family reaction? my mom was very happy. Like Okay. she, मतलब, I think that's the moment we prepare so much for throughout the year. We go like so many revisions and all of that just for that moment. And I'm very lucky to have experienced it. I was very happy. And even my parents and my sister. Okay. Who all are there in your family? So I have one elder sister Okay. and my mom, dad, and grandparents. May I have my dadi. Acha. So, you did my lectures also. What did you find the best in my lectures? Sir, I used to watch your lectures. Like I was very lucky actually. I saw your YouTube this video which you had uploaded, where Hmm. you said that you're going to upload it for free on YouTube, and I was mind boggled. I was like, sir said, oh, AIR himself, and sir is uploading on YouTube. I have to watch it. So I started watching. I started watching the introduction and direct tax. So started with direct tax, and then like what I used to do, I have my offline lectures in Mumbai. So I Okay. used to go there, I used to study, and then I used to come home and I used to watch your lectures also because I loved them. Like आप बीच बीच में हंसाते हो और फिर आप इतने प्यार से एक्सप्लेन करते हो कि मतलब बस बहुत अच्छा लगता है सुनने में. So that was direct tax that I did with you live when you used to upload one अच्छा video अच्छा। that I did. अच्छा, तो आपके रोज रोज हो जाते थे क्लासेस, कभी हाँ छूट सर, नहीं हाँ. थी, कभी नहीं बैकलॉग कहा. हुआ आपका? ओके। तो सिंस यू वर ऑलरेडी डूइंग फेस टू फेस क्लास, तो व्हाई डिड यू नीडेड दिस क्लासेस? मतलब जरूरत ही क्या थी फिर इसकी? सर आप it is subjective first of all, like हाँ। subjective paper. And I have obviously I have never studied tax before. So हम्म। I knew from my sister she is pursuing CA as well as CS. अच्छा So she told me कि देखो अच्छा grip रखना है tax पर whatever happens. So I knew that wherever I'm getting the quality education, I have to take it. And I took it as a sign actually when I saw, like I was just scrolling one day through YouTube and I saw your thumbnail, and then I knew that I have to watch it. So that's why I did extra YouTube lectures also. And one more thing which is exceptional about your videos are your examples which you give during while you explain, and they are
like high level examples, not just normal examples which everybody gives while explaining. So those were the ones which I used to note down in my book also, the copy which I had, because हमें 10 घंटे मिलते हैं before exams और tax is our second last paper. तो हम 5 दिन कंटिन्यूअसली एग्जाम दे के थक गए थे, तो आई न्यू कि मुझे एक बुक बनानी है बिफोर द एग्जाम्स, एंड उसमें मैं आपके एग्जाम्पल्स लिखती थी जो मुझे समझ में लाइक ऐसे होता है ना कि भाई ये क्या क्वेश्चन था, ऐसे। तो वो वाले मैं लिख देती थी नोटबुक में। So Bhumi, when you were speaking all this, I was even getting happy, but at the same time, I was getting emotional also. You know why? Because आपके जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी इस तरीके से हेल्प हो रही है इसके जरिए, right? Maybe you are the person who was taking class also, right, parallelly. But there are many students जिन्होंने शायद क्लासेस ले ही नहीं रखी है face to face, या maybe they are not even able to afford those classes virtually also, right? तो आई बिलीव उनके लिए और भी ये फ्रूटफुल होगा, एंड आई बिलीव कि माई पर्पस ऑफ गिविंग क्लासेस इज ऑल्सो सर्व्ड व्हेन आई कैन सी कि यस द पीपल कैन इवन स्कोर एआई आर वन विद दोस लेक्चर्स। डेफिनेटली सर, आपको पता है, एंड दिस ऑल्सो वन थिंग आई नोटिस्ड अबाउट यू, आई यूज टू कमेंट, आई हैव माई स्मॉल बिजनेस किताबी, सो अच्छा। दैट ईमेल आई यूज फॉर कमेंटिंग लाइक ओके। यूट्यूब वगैरह करने के लिए। अच्छा अच्छा So अच्छा। I used to comment on that day only, ओके। and I used to see that you're replying to each and every comment. तो अच्छा। जब आप लाइक ऐसे एक्सप्लेन कर रहे होते या फिर आप मुझे हमें बोलते थे कि पॉज करो और कमेंट करो, तो आई यूज्ड टू रीड द कमेंट्स ऑफ अदर यूजर्स आल्सो, एंड मतलब वो इतने हार्टफेल्ट कमेंट्स लिखते हैं आपके लिए कि सर आज हमने आपका वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा सर, किंग ऑफ टैक्स। तो मतलब दैट वाज मोटिवेशनल कि हाँ मुझे रोज देखना है सो वीडियो। आपके कमेंट आज मैं दोबारा से देखने वाला हूँ, राइट, एंड दैट इज किताबी। ओके। अच्छा। भूमि, आप थोड़ा सा बच्चों को गाइड भी करो कि व्हाट वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, जिससे उनकी भी हेल्प हो थोड़ी सी। Sure, sir. So for tax, like I told you, I had purchased offline lectures also, and your videos also I used to watch. So first thing, and I had my guidance through my elder sister also. So she told me कि do not rush. That is one thing which you need to keep in mind while you're starting with tax. अगर आपने already tax पढ़ा हुआ है, then it's phenomenal. But अगर आप just चालू कर रहे हैं and you're understanding tax, make sure that you learn, not learn, but make sure that you understand what these concepts are, and do not rush. Give your mind the peace to take in, absorb all the lectures. So first watch the lectures. That is what I did. First watch the lectures normally, make your notes, and then make your notes in the sense you can write ki, if you're watching a YouTube lecture or you're watching online lecture, just mark down the timing कि ये timing का sum बहुत important था. And then when you have understood the whole lecture, you should sit down and make your own notes. If you like making notes properly, make your own notes and go to that video and see the example and go through it. So this was step number 1, where you just understand. Now step number 2, which is very important, and I think ये CS के बच्चों के लिए तो बहुत ही important है. Please practice, because वो 3 hours are so, मतलब इतना कम लगता है ना. मतलब the paper which I got June 24, I loved the paper in the for 15 minutes. I was like, wow, what questions. But till the time I started writing, and never ending. It felt कि मेरा पेपर खत्म होगा कि नहीं होगा, मतलब बहुत वो स्ट्रेस आ रहा था. So I think somewhere I lacked practice maybe. But this is something, if you're starting with tax, please practice, please. And sir अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो साथ साथ में लिखा भी जाओ, मतलब रफ बुक रख लो और साथ साथ में लिखते रहो वो सम्स. And please do it जो properly, ऑब्जेक्टिव है वो format कभी wise. ना भूले बच्चे कि यू हैव टू बिकम लॉ मेकर एंड नॉट लॉ टेकर, राइट। मैं हमेशा कहता था कि प्रोविजंस पे आपको कंट्रोल होना चाहिए रेदर देन रशिंग टू जस्ट सॉल्व न्यूमेरिकल्स, राइट। अगर आपका प्रोविजंस पे बहुत अच्छा कंट्रोल है तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल। और इनकम टैक्स इनफैक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे प्रैक्टिस विल नॉट मेक यू परफेक्ट, राइट, कि हम ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इससे परफेक्शन आ रही है, नहीं। जितनी इन डेप्थ नॉलेज प्रोविजन की होगी फिर उसका एप्लीकेशन उतना ही शानदार होगा। एंड राइट, यू डिड इट इन द राइट मैनर। एनी अदर टिप्स दैट यू वांटेड टू गिव टू द स्टूडेंट्स? So for CS exams, please understand the line which sir said that आपको लॉ मेकर बनना है. बिकॉज हम इतना लॉ पढ़ते हैं सीएस में, हमें हमें 5 सब्जेक्ट्स है जो प्योर लॉ है. सो डू नॉट स्टडी इट ओनली विद द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम्स. स्टडी इट बाय अ पर्सपेक्टिव दैट दिस इज योर करियर विच यू आर स्टार्टिंग नाउ. सो लॉ को समझो, उसके पीछे का लॉजिक समझो कि ये क्यों प्रोविजन है, ये क्यों प्रोविजन आया है,
और अगर समझ नहीं रहा है तो यू शुड टेक गाइडेंस, बिकॉज इतने दिग्गज लोग हैं अभी तो यूट्यूब पे कि आपको, एंड देर आर डेफिनेटली अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स नाउ दैट दे कैन प्रोवाइड यू गाइडेंस नाउ. सो आई थिंक दैट इज वन टिप, दैट गो टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट जस्ट कि मुझे एग्जाम में लिखना है लिखना है लिखना है. दैट इज वन थिंग. वो में सीएस एक बहुत ही डिफिकल्ट कोर्स है, राइट? और इसके लिए बहुत सारी सेक्रीफाइसेस की भी जरूरत होती है। तो डू यू फाइंड कि इज इट वर्थ डूइंग इट? ओके। Sir, after the results, definitely yes. Like, after you get your results, I think वो sacrifices make it worth. वरना आपको ऐसे लगता है कि मेरा रोज का साल था जैसे मैं हमेशा करती थी और बस रिजल्ट आ गया. बट this is the first professional exam which I gave, proper professional exam, and this was the first time where I deleted social media. मतलब Instagram, I use Insta daily on a daily basis, और मैंने जनवरी से ही बंद कर दिया था इंस्टाग्राम. ओनली यूट्यूब एंड व्हाट्सएप आई हैड. And second sacrifice which I gave was my business. Like till CSET, that is entrance exam, we were doing really well. Like I wanted to keep going with the business, but then I saw the syllabus, and I was like, this needs my time, and I have to give it. So that was another sacrifice which I had to make. But then after the results come out, you feel it was all worth it. सो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो ऑफ योर्स। तो आप अपने बिजनेस के बारे में भी बता दो, लेट अदर्स नो। ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट वेयर यू आर अलाउड टू पिच योर बिजनेस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो। Thank you so much, Raj sir. Actually, I began with the business on Teachers' Day, that is 5th September in 2022, when I was in 12th grade. ओके। So that's about the business, like Kitabi. Kitabi is the name of the business. It sells bookmarks. So they are all personalized and we create it like as per your order. And we also have certain, ready-made bookmarks which are there. And to supplement it, we sell books as well. But our main business is of bookmarks and accessories with books. So that was the whole business. So you can tell where the students can buy these things. We have, you can connect with us on LinkedIn as well and Instagram as well. We have our account, Kitabi. Kitabi is the name. अच्छा, देखो ये रैंकर का सब प्रोडक्ट है, ठीक है? तो सो इससे कुछ तो रैंक वाली वाइब आ जाएगी। अच्छा, बात ये नहीं थी भूमि की आपके लिए ये सेक्रीफाइसेस वर्थ है कि नहीं है। बात ये भी है कि जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं इसे क्वालिफाई करने के लिए, क्या उनके लिए ये वर्थ है? क्या उनकी सेक्रीफाइसेस, मतलब विल दे फाइंड कलर्स इन देयर सेक्रीफाइस? आप उनके लिए क्या कहती हैं? सर, मेरे हिसाब से मतलब देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेल्फ इवैल्यूएशन. तो जब आप, मतलब ऑब्वियसली इट इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग व्हेन यू गेट द रिजल्ट्स, एंड अगर आप मतलब इतनी मेहनत की है और फिर वो 4 अक्षर देखना, मतलब वेरी शैटरिंग. और हम, वी आर वेरी यंग, वी ऑल ऑफ अस आर वेरी यंग व्हेन वी स्टेप इनटू दिस प्रोफेशनल एग्जाम्स. सो आई थिंक just one step, one advice, that do self evaluation. Ask yourself that was this the best you could give, या फिर इससे और आप मेहनत कर सकते हो. एंड अगर उसका आंसर हाँ है तो डेफिनेटली यू शुड कंटिन्यू एंड डेफिनेटली ऑल योर सैक्रिफाइसेस आर वर्थ इट. बट इफ यू फील दैट दिस वाज ऑल आई कुड गिव, देयर इज नथिंग एल्स, then I think you should get your certified copies, like get it evaluated, see where were you lacking, and then I think you can, if you want, and if you see that there's no other way, then you should switch or something. But I think self evaluation is the key. आपको पता चल ही जाएगा कि आपको कंटिन्यू करना है या नहीं करना. सो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मेहनत हो रही है, आई नीड टू टेक एन स्टेप बैक? नहीं, कभी ऐसा सर नहीं? डेफिनेटली, नहीं नहीं सर, डेफिनेटली लगा है. हाँ। जब भी मेरा फेब्रुवरी में पोर्शन खत्म हो गया था, सिलेबस पूरा खत्म हो गया था फेब्रुवरी में, और फिर जब मैं रिविजन करती थी ना, सेल्फ स्टडी, एक तो इतना सारा है पढ़ने को, बहुत कुछ है, इतना लेंदी वास्ट सिलेबस है कि फर्स्ट रिविजन हो जाता है बिकॉज यूर एक्साइटेड कि नाउ हैव टू स्टार्ट विद द रिविजन, सेल्फ स्टडी, यस आई डू इट. बट व्हेन यू कम इनटू द सेकंड एंड थर्ड रिविजन, आई थिंक दैट इज द ब्रेकिंग पॉइंट वेयर यू फील कितना ज्यादा और कितना करना है मुझे, और कितना ऐसे. सो आई थिंक दैट वाज वन स्टेप वेयर आई फेल्ट I'm doing so much. Will the result come? Will am I worthy of this? What am I doing? That were the questions which used to come in April. Around April, I started getting these thoughts.
But then I felt I've done so much mehnat. I'll sit down, I'll just do my work, and then I'll give the exams, and then we'll see. And prayers do get answered, sir. सो आई Seriously. वुड लाइक टू टेल टू एवरीबडी हु इज वाचिंग दिस वीडियो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज था कि इवन रैंक वन वाले को भी ऐसा लगता है कभी कभी कि आई नीड टू टेक इन स्टेप बैक, राइट? तो अगर आपको एंजाइटी होती है, लगता है कि इसमें परेशानी है, डिफिकल्टी है, तो ऑब्वियस है लगेगा। आप देखो ना, रैंक वन वाले को भी डिफिकल्ट लगता है, ठीक है? तो इससे कभी परेशान नहीं होइए, आपको हार्डवर्क करना है एंड ऑब्वियसली वन डे यू विल अचीव सक्सेस। और दूसरी बात, आप अगर स्टेप बैक कर भी लेते हैं तो दुनिया की कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत आसान है? अगर वो आसान होगी तो उसकी वैल्यू भी उतनी ही आसान होगी, कम होगी, राइट? तो अगर हमें कुछ भी बड़ा चाहिए लाइफ में तो बड़ी मेहनत करनी है, हमें उसके लिए बड़ी सेक्रीफाइसेस करने हैं। तो भूमि ने भी सेक्रीफाइस किया है, ऐसा नहीं है, भूमि को भी डिफिकल्ट लगा है, एंड देन ऑल्सो सी हैज डन इट। अच्छा, आप सेलिब्रेट कैसे करोगे अपनी रैंक वन को, या आपने कर लिया सेलिब्रेट, कैसे किया वो भी बताओ आप। सर बस अपनी बहन और लाइक जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे, ये 1 साल तक उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो मैं बस उनके साथ बाहर गई थी और अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट किया, बस ये। ओके, वंडरफुल। अभी तो सर नेक्स्ट लेवल भी है, तो उसके लिए चालू करना है। नहीं, सेलिब्रेट भी अच्छे से कर सकते हो, अगर 2-4 दिन और लगा के भी सेलिब्रेट करना है तो इट्स वर्थ डूइंग इट। अच्छा, व्हाट वाज योर डेली स्टडी शेड्यूल? आप कितने घंटे पढ़ते थे? बहुतों को यही जानना होता है कि भाई रैंकर्स जो होते हैं वो कितने घंटे पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं कि बीच बीच में ब्रेक लेते हैं, कितना ब्रेक ले लेते हैं? तो इस पे कुछ बात करो भूमि। श्योर सर। तो सर मेरे दो टाइम टेबल्स थे, एक था जब मैं ऑफलाइन क्लासेस जाती थी और एक था जब मेरे पास सिर्फ सेल्फ स्टडी था। हम्म। सो फॉर दोज हु आर वाचिंग लेक्चर्स एंड दे आर डूइंग मतलब अभी अभी जस्ट पढ़ना चालू किया है, तो तभी मैं सिर्फ लेक्चर्स देखती थी। लाइक आई यूज टू वेक अप एट 9 AM। मैं एक्चुअली सर एक और चीज, मैंने कभी सैक्रिफाइस नहीं किया सोने पर। बिल्कुल सैक्रिफाइस नहीं किया ड्यूरिंग द 10 months। जस्ट वाइल द एग्जाम्स वर अप्रोचिंग तब भी बहुत सैक्रिफाइस हो गया, लाइक आई थिंक पूरे साल का सैक्रिफाइस तब हो गया। बट फॉर टाइम टेबल, आई यूज टू वेक अप एट 9 o'clock एंड देन मॉर्निंग रिचुअल्स वो सब करके देन आई यूज टू सिट फॉर रिविजन, लाइक रिविजन इन द सेंस जो कल कराया था बस वो देखना, नॉट यस। लर्निंग, जस्ट गोइंग थ्रू कितने ये। बजे बैठ एंड जाते थे? सर अराउंड 10 o'clock, 10 o'clock मेरा फिक्स्ड था कि कुछ तो पढ़ाई शुरू करनी है 10 बजे। ठीक तो है। वो कर लिया। तो उसमें कुछ भी या फिर आप गूगल पे कोई रिसर्च आर्टिकल पढ़ लो जो आपने कल सुना था सर से, जो आप उन्होंने बोला था, वो कुछ भी, मतलब बेसिकली स्टार्ट विथ योर स्टडिंग एट 10 AM। देन आई यूज टू डू दिस फॉर आई थिंक अराउंड 1 hour आई यूज टू डू दिस। एंड देन लंच करके आई यूज टू लीव। आई हैड माई क्लासेस फ्रॉम 2 to 8:30 PM। ये रूटीन होता था। देन आई यूज टू कम होम अराउंड 9 o'clock। एंड फिर जब भी स्टार्टिंग के डेज थे तब तो आई यूज टू चिल आफ्टर 9 PM। बट जैसे ही 1-2 महीने हो गए तो फिर घर पे आके 9 PM, अराउंड 9:30 to 9:45 आई यूज टू स्टार्ट विथ पास्ट पेपर्स। एंड दिस इज अनदर टिप विच आई वांट एवरीबडी टू प्लीज फॉलो, कि आपका जब एक अच्छा खासा चंक हो गया है सिलेबस का, प्लीज स्टार्ट रेफरिंग टू द पास्ट पेपर क्वेश्चंस, दैट विल हेल्प यू अलॉट। सो शाम को मैं बस पास्ट पेपर्स करती थी और फिर सुबह उठ के आई यूज टू रिवाइज कि कल मैंने क्या पढ़ा, वैसे। तो ये मेरा लेक्चर के समराइज टाइम का करो रूटीन। कि कितने घंटे टोटल पढ़ाई की तुमने। तो मैंने बिल्कुल नहीं गिना। लास्ट के जो 10 महीने मेरे गए हैं सर, मैं, आप मुझे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि कितने घंटे का ब्रेक लिया। मैं हमेशा बुक के साथ ही होती थी। बट सर आई हैव टेकन ब्रेक्स, डेफिनेटली आई हैव टेकन ब्रेक्स बिटवीन माय स्टडी पैटर्न्स। तो आई ठीक। थिंक सर मैं 4 to 5 hours का ब्रेक तो लेती ही थी। चलिए एंड मैं अराउंड कैलकुलेट एट कर देता हूँ आवर्स आपके लिए। आपने 10 बजे पढ़ाई शुरू की, ठीक है? आपने रात में क्या बजे खत्म की पढ़ाई? सर 11 बजे रात को। 11 बजे खत्म की, सो हो गए 13 घंटे। अब बीच के ब्रेक हाँ बता दो आप। सर, बीच के ब्रेक्स यहाँ पे, ये ड्यूरिंग ऑफलाइन लेक्चर्स है, जब ऑफलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं तभी आई यूज टू टेक अ ब्रेक ऑफ 1 hour। वो 9 to 10 वाला, अच्छा सर 10 PM को, 10 AM को तो मैंने चालू किया पढ़ाई, मैं तो 9 बजे उठ 10 PM गई से थी। 11 PM कर दिया मैंने। 13 घंटे हो हाँ गए, अब इसके ब्रेक हाँ कितने? सर, मेरे ब्रेक्स थे वन वन 1 PM to 2 PM का ब्रेक बिफोर द लेक्चर। और बीच में 30 मिनट्स का ब्रेक मिलता था हमें ड्यूरिंग द लेक्चर्स। एंड शाम को घर आके 1 घंटे का ब्रेक, दैट इज 8:30 to 9:30 का ब्रेक। ठीक है, ठीक है। तो 2.5 घंटे का ब्रेक है उसमें, तो इसका मतलब ये हो गया कि तकरीबन 9.5 घंटे की पढ़ाई थी। अब वंस योर फेस टू फेस क्लासेस वर ओवर, तो उसके बाद फिर कितने घंटे पढ़ते थे आप?
पर उसके बाद तो सर 12 आवर का मेरा गोल होता था कि 12 आवर्स तो पढ़ने हैं। बट हम्म। कभी कभी ज्यादा हो जाता था, कभी कभी कम हो जाता था कि थक गए हैं या बाहर जाना है, ऐसा कुछ। वॉक करने आई यूज टू गो 1 आवर आफ्टर माई डिनर, आई यूज टू गो। ठीक है। और देरास, लाइक आई एम अ जैन, सो आई यूज टू गो टू देरासर। मेरे देरासर के यहाँ पर ही गार्डन है, तो मैं दर्शन करती थी और फिर वॉक पे जाती थी। दिस वॉज माई रूटीन। एंड मेरा तभी 8 AM को शुरू करती थी ड्यूरिंग सेल्फ स्टडी, एंड 11 PM स्टॉप। 11 PM। ठीक, यस। बहुत अच्छे। अच्छा, विच सब्जेक्ट डिड यू फाइंड मोस्ट चैलेंजिंग? सर मोस्ट चैलेंजिंग में आई वुड गो विथ ECIPL सर। इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, ये सब्जेक्ट था। एंड सर इसमें एक्चुअली द दे हैव फॉरेन लॉज, तो वो थोड़ा ग्रास्प करने के लिए इट वाज चैलेंजिंग। हाउएवर बाय द एंड जब ये रिविजन्स हो गए थे तो इट वाज स्मूथ। बट सर बाकी सब तो बहुत अच्छा था, बहुत पसंद आता था अंदर से, तो चैलेंजिंग नहीं लगा कभी। अच्छा। सो अब भूमि मेहता कुछ समय में CS भूमि मेहता हो जाएंगी, राइट? तो जब वो CS भूमि मेहता हो जाएंगी, तो क्या करने वाली हैं? सो व्हाट्स योर प्लान फॉर द फ्यूचर? Sir, first, like I have thought of opening my own practice, like in the future years. But before that, I want to see, like I'm just 18 years old right now. So after I complete my CS qualifications, तो मुझे as an employee काम करना है, like at least 3 years I want to work as an employee, and then if that fascinates me, then I'll continue. Or else my end goal is opening a practice. Like I want to be self-employed. अच्छा। आ, आपने इंटर्नशिप अपनी फाइनलाइज कर ली है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप यू आर गोइंग टू डू और व्हाट थिंग्स यू हैव टू डू ड्यूरिंग इंटर्नशिप? सर एक्चुअली दो ब्रॉड गोल्स है, कंसल्टेंट फर्म में मैं जा सकती हूँ या फिर एक लिस्टेड कंपनी में मैं जा सकती हूँ, मतलब इतना ही सोचा है मैंने। और फिर अभी जैसे CS प्रोफेशनल की मैं पढ़ाई शुरू करूंगी, तो आई थिंक मुझे और क्लैरिटी आती रहेगी, बिकॉज मैं पहले पढ़ाई खत्म करूंगी और फिर आई गो विथ माई ट्वेंटी वन प्लानिंग मंथ्स फॉर आर्टिकलशिप, ओके। ठीक है, ये भी परफेक्ट है। तो व्हेन आर यू अपियरिंग फॉर फाइनल्स? अब आपके फाइनल्स कब आ जाएंगे, प्रोफेशनल एग्जाम? सर June 25 नेक्स्ट ईयर। 25 नेक्स्ट ईयर, ओके। चलिए, और कोई फाइनल कंक्लूजन या फाइनल टिप्स की एक बात जो आपको लगती है कि विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि वो बच्चे अगर सर ध्यान दें तो वो सक्सीड कर सकते हैं? सर मोस्ट इम्पोर्टेंट सर, ये मैंने हर इंटरव्यू में सुना है, आपने जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं और लिए हैं, हैव फेथ इन योरसेल्फ, ये सब बोलते हैं। बट मेरे जैसे जो इंसान है, मेरे को बहुत सेल्फ डाउट आते हैं, बहुत। सो आई थिंक हैव दैट ग्रुप ऑफ पीपल, इट कैन बी योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, एनीबडी हु हैव फेथ इन यू, सो दैट दे कीप ऑन रिमाइंडिंग यू दैट यू नो यू कैन डू इट। बिकॉज सब बोलते हैं हैव फेथ इन योरसेल्फ, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव फेथ इन ओन सेल्फ, और बहुत लंबे समय तक फेथ रखना पड़ता है, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी विच वी हैव. So I think have the perfect group of people because they make you who you are. So, राइट। सो आपकी सराउंडिंग बहुत मैटर करती है। इनफैक्ट ये भी एक बात है कि आप, जो आपके करीबी 5 लोग होते हैं, राइट, उनकी अगर एवरेजिंग कर दी जाए तो आप वही बनते हैं। तो मेक योर सराउंडिंग्स ऑलवेज इस तरीके का कि जो आपको लगता है कि आपको पॉजिटिव इनपुट्स दे सकते हैं, और जिनसे आप और सक्सीड कर सकते हैं, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है। इनफैक्ट अगर आप एक ऐसे रूम में है ना, जहां पे सारे के सारे इस तरीके के लोग हैं, जिससे आप अपने आप को बेटर फील कर रहे हैं, मतलब आप अपने आप को सुपीरियर फील कर रहे हैं, तो यू आर नॉट इन द राइट रूम। आपको वो रूम ही चेंज कर देना चाहिए। आप उस रूम में जाइए जहां पे आपको लगता है यू कैन गेट सम लर्निंग्स, राइट? Just a message from your yeah. side to the audience who are watching my videos on YouTube channel. Hello everybody who's watching Raj sir. Today I'll be speaking to you all. First of all, congratulations on making the right choice. मेरे को तो एज अ साइन आया था सर का वीडियो ऑन माय फीड, यूट्यूब फीड, एंड आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने वो साइन लिया और मैंने राज सर के वीडियोस देखे, बिकॉज इतना क्वालिटी एजुकेशन एंड वो भी somebody is providing for free, जिसके लिए लोग इतना पैसा खर्च कर देते हैं. So I think sir definitely is a boon to everybody, like all over in globe I think. सो सर थैंक यू सो मच, आपके क्वालिटी एग्जाम्पल्स जो है आप वीडियो में प्रोवाइड करते हो, और आप इतनी शांति से पढ़ाते हो कि मन लग जाता है पढ़ाई करने से. तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. तो भूमि, डेफिनेटली. क्या अब हम लोग एक रैपिड फायर राउंड करें?
ठीक है सर, श्योर। Okay, so the rapid fire round question starts here. Your favorite subject in CS? टैक्स। Okay. Least favorite subject? ECIPL। Okay. ECIPL What सर। would you prefer, book, printed book or ebook? प्रिंटेड बुक डेफिनेटली। Okay. Short breaks during studies or long, lesser number of long breaks? शॉर्ट ब्रेक्स ड्यूरिंग स्टडीज। Okay. So what do you want, morning person or night owl for studies? आई थिंक नाइट आउल, आई प्रिफर्ड बीइंग अ नाइट आउल। Okay. One word to describe your study strategy. कंसिस्टेंसी। Okay. Your favorite teacher. सर कहाँ, लाइक स्कूल, CS, व्हाट? In your CS. सर यू, डेफिनेटली। Okay, thank you. Uh, your passion in one word. कुछ कर, वन वर्ड ना? वन वर्ड सर तो बहुत टफ है। Your go-to study music or playlist. सर गो टू, सर बॉलीवुड मोटिवेशनल सॉन्ग्स, ये अच्छा, जिद्दी दिल, दिल ये जिद्दी है, वो सारे सॉन्ग्स। एक लाइन गा दो आप. नहीं नहीं सर, बहुत खराब है। uh, Best advice that you have received for your preparation. यू कैन, यू विल। Okay, wonderful. What would you guide to other people? YouTube, self-study, paid lectures. What would you guide? सर अगेन अनदर सेल्फ इवेल्युएशन, अगर आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो आई थिंक ऑफलाइन लेक्चर्स आर द बेस्ट, यू कैन गो सिट, टीचर आपके सामने है। बट इफ यू आर अ पर्सन हु वांट्स टू स्टडी अकेले में और शोर पसंद नहीं है, डेफिनेटली पेड लेक्चर्स ऑनलाइन। या फिर इफ यू आर गेटिंग प्रॉपर गाइडेंस ऑनलाइन और आप देख रहे हो कि वेरी क्वालिटी एजुकेशन, डेफिनेटली दोज फ्री लेक्चर्स ऑल्सो। ओके भूमि, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. और आपको बहुत 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 बधाई हो. आपने जिस तरीके से यहाँ सीएस एग्जीक्यूटिव में झंडा गाड़ा है, बिल्कुल उसी तरीके से सीएस प्रोफेशनल में गाड़िए. और इससे भी इम्पोर्टेंट है कि आप पढ़ाई तो करिए और लाइफ में जो भी डिजायर्ड सक्सेस है आपकी वो अचीव कीजिए और साथ ही खूब खुश रहिए. राइट. बी हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ एंड अचीव ऑल योर डिजायर्ड सक्सेस. ओके, थैंक यू बाय सो बाय मच, भूमि. मीन्स अ लॉट सर, थैंक यू।